Hello everyone, welcome back to the channel. So today I will be solving the bi-weekly contest 95 of Lead Code. This is my first contest of 2023. I will try to be more consistent this year. Although I was not active on YouTube from last 1 month and also not participating in a contest. So let's move to the first question, which is categorize box according to the criteria. Okay, so I have given one W on this first question. That was a silly mistake. This happens when you watch cricket side by side while giving contest. So this was an easy question. We have a box whose length, width, height and mass are given, and there are few conditions. According to that, we have to answer return a string which can be both neither bulky and heavy. Okay, so what are the conditions? If any of the dimensions are greater than 10,000, then or the volume is greater than 1e9, then it will be bulky. And if mass is greater than equal to 100, then it will be heavy. And if the box is bulky and heavy both, then we have to return both. And if it is neither bulky nor heavy, then we have to return neither. And if it is bulky, then return bulky, else return heavy. So it's an easy one. I have first typecasted all dimensions into long because of so that it will not overflow when we multiply this. Okay, now this is the condition for bulky one, this is for the heavy one. If A is 1, then it is bulky. If B is 1, then it is heavy. And if both are 1, then I am returning both. If none are 1, then I am returning neither. If A, then bulky, else heavy. So it's an easy one. So now let's move to the next question. I don't think there is any prerequisite for this question. So okay, so second was also an easy one. Mm-hmm. Yeah, for a stream of second question is find consecutive integers from a data stream. So for a stream of integers, implement a data structure that checks if the last k integer passed in the stream are equal to value. Okay, so we have a stream which is initially empty. You can say a stream for you can right now consider a stream as a vector or array, basically, which is initially empty. Okay, so now you are inserting some number one by one, and initially the value is value, and limit is k. Now whenever you get a call for this function consec, then you have to add a number num to the stream at last, and you have to check if the last k integers are equal to num, then return true, and else return false. And if the size of stream is less than k, then also you have to return false. So it's also an easy one. I have globally declared val, count and cur. Now val be the value, count cnt will be the k, and cur will be 0. Basically from cur I mean to say लास्ट के कितने नंबर वैल्यू के इक्वल है. सो इनिशियली ज़ीरो है, so car is 0. So whenever I got a call for this consec, and if num is not equal to val, so now I'm inserting num at the back, so now car should be 0 because num is not equal to val, and I'm direct returning false because last integer is not equal to num value, so that's why. And else my cur will be increased because last integer is num, and initially there are current number of integers at the last which are equal to value. And if cur is greater than equal to 70, then true, else false. So this is also an easy one. Just you have to think a bit on this, like हमें global declare करना होगा, बस और कुछ तो नहीं था, नॉर्मल इजी इम्प्लीमेंटेशन थी. So now
7000 प्लस पार्टिसिपेंट्स ने सॉल्व भी कर दिया है. So now let's move to the third one. Okay, so इसमें क्या था कि we are given an vector nums and the effective value for any three indices I, j and k is the first of all we have to take the bitwise OR of nums I and mj, and then we have to take the bitwise AND of that value with nums k, and the effective value for that three indices pair will be this one. Now we have to find all the possible triplets and calculate the effective value of all that triplets, and at last we have to take the XOR of all that value and then return that. So first of all, one thing to notice is I, j, k can be similar one. There is no condition ki I is less than j or greater than j, or I is not equal to j. There is no condition. Just I, j, k should be within 0, 2 and -1. Yeah. So one thing you have to notice. Okay, whiteboard. Yeah. So if we have a 1 1 1, let's start with 0 0 0. Let's start with 0 0 0. This is I1, this is nums j, and this is nums k. Yeah. So 0 0 0, first of all I am taking XOR of these two, OR of these two, and then AND of these two. So 0 or 0 is 0, and taken AND with 0 is 0. Yeah. 0 0 1, this one is 0 bitwise OR, and then bitwise AND will be 0. So one thing we have to notice, for the result to be 1, nums k this bit should be set. Like हमारे पास nums k वाली जो bit होगी वो set होनी चाहिए, and one of the two bits should be set, at least one of the two bits, because if one of these two is set, then the result of bitwise OR is set, and set and with set will also give 1. Yeah, you have to note this case. So इससे हम कह सकते हैं कि किन केसेस में आएगा. आंसर विल बी 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1. या इन तीन केस में आंसर 1 आएगा. या एनी इन दोनों में से कोई एक सेट होनी चाहिए, एटलीस्ट कोई एक, एंड दिस शुड बी सेट 1. या सो हम क्या करेंगे अब, के पे इटरेट करेंगे. या फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कर दिया, नम्स आई की वैल्यू 1E9 तक है, सो दिस मीन्स 30 बिट्स आर सफिशिएंट 0 to 29. या तो CNT array will be the count of ith bit in the nums array. Yeah, so x is the value, any element of nums, and if x and 1 this I, this is true only when ith bit is set in x. So I am incrementing CNTI by 1. So basically at last, जैसे कि if in this case 1 and 4, ओके, सो 1 क्या करेगा, हमारे CNT 0 में इंक्रीमेंट कर देगा, बिकॉज फर्स्ट बिट इज 0th बिट इज सेट इन 1. या एंड बाकी सारे तो 0 ही रहेंगे, एंड 4 विल डू CNT 2 प्लस इज इक्वल टू 1. सो एट लास्ट क्या होगा, CNT 0 1 होगा और CNT 2 1 होगा. सो बेसिकली इससे क्या हो जाएगा कि 0th बिट कितने नंबर्स में सेट है, सेकेंड बिट कितने नंबर में सेट है, एट लास्ट CNT में हमारा ये होगा. या तो हमें क्या करना है, अच्छा XOR क्या होता है, XOR होता है कि अगर टू बिट सेम है देन देयर XOR विल बी 0. बेसिकली अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है कोई बिट तो उसका XOR 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 0 हो जाएगा, फिर उसे 3 के साथ लेंगे तो वो वापस 1 हो जाएगा, एंड फिर 4th के साथ लेंगे तो 0 हो जाएगा. तो बेसिकली इवन नंबर ऑफ बिट्स का अगर सेम है तो
ज़ीरो हो जाएगा, अगर ऑड है तब वो सेम वैल्यू रह जाएगी। या तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिडरिंग माई दिस एलिमेंट इज़ kth, बेसिकली इंडेक्स ऑफ वैल्यू ऑफ kth एलिमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा ये kth है तो मैं इसके हर बिट पे इटरेट कर रहा हूँ। हाँ, सो दिस बिट शुड बी सेट वन, बिकॉज मैंने यहाँ पे कहा था कि k का ये बिट तो सेट होना चाहिए, तो दिस बिट सेट है। तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ कि अब मेरे को आई और जे के मेरे पास कितने पॉसिबल वेज हैं। ओवरऑल तो मेरे पास आई और जे के एन क्रॉस एन है, क्योंकि एन इंडेक्स आई के लिए है, एन जे के लिए है। तो इसमें से कितने इंडेक्स मैं लूँगा कि मेरा ये ith बिट वाला आंसर ज़ीरो आएगा इस के लिए। या तो हैव विल बी CNTI, इतने लूँगा तो आएगा, पर नॉट हैव मतलब बेसिकली नम्स आई एंड नम्स जे बोथ विल हैव ith बिट ज़ीरो, वो होंगे n माइनस CNTI। या तो एन हैव विल बी n माइनस CNTI इंटू, मतलब आई के लिए n माइनस CNTI हो गए, जे के लिए भी n माइनस CNTI हो गए, जिनमें आंसर ज़ीरो आएगा। तो जिनमें आंसर वन आएगा वो हो गया TOT इज़ दिस वन माइनस हैव। एंड अगर ये ऑड है तब मैं ऐड आई में वन कर दूंगा ऐड, एल्स इवन है तब तो XOR ज़ीरो ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो एट लास्ट आई विल इटरेट ओवर द ऐड एरे, and if add I is odd then I will add this to the answer. Yeah, so that's the logic. So basically implementation तो easy थी, हमें बस ये देखना था, मतलब इजी तो नहीं कहूँगा बट ठीक थी, हमें ये देखना था कि देखो नम्स का साइज़ हमारा 1E5 है, तो n² तो हम कर नहीं सकते। तो इससे आइडिया लग रहा है अब बिट्स हमारी 30 तक जाएंगी, 1E9 तक है। हाँ, तो इससे हम N30 तक तो कर ही सकते हैं, है ना। तो अब हम इसमें क्या सोचें, और हमें XOR भी दे रखा है। XOR की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि सेम नंबर सेम 2 टाइम्स आ रहा है या इवन टाइम्स आ रहा है तो ज़ीरो, ऑड टाइम्स आ रहा है तो वन, यही एक XOR की प्रॉपर्टी होती है ना। तो बस इसी का यूज़ करना है हमें। और ये थोड़ा सा मैथ्स है यहाँ पे, बिट ऑफ मैथ्स, ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। या आंसर विल ऑलवेज बी इन द इंटीजर लिमिट। So now let's move to the last question. Yeah. So इसमें क्या था, हमारे पास n स्टेशंस थे, हाँ, और हर स्टेशन पे पावर स्टेशन थे। ईच स्टेशन हैज़ ए नंबर ऑफ पावर स्टेशन विच आर गिवन बाय द एरे स्टेशन एरे। या सो लाइक एक पावर स्टेशन है एट एनी स्टेशन आई, इट कैन पावर फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेशन। लाइक अगर कोई ith स्टेशन पे कोई पावर हाउस है, बेसिकली यू कैन से पावर हाउस, तो वो कुछ एक लिमिट तक ही अपने आसपास के स्टेशन को पावर सप्लाई कर सकता है। या सो डैट लिमिट इज़ बेसिकली R। या सो इफ़ I पे है पावर स्टेशन, सो डैट कैन सप्लाई पावर टू I माइनस जे लेस देन इक्वल टू R। सो लाइक आई से आगे के जे स्टेशंस को और आई से पीछे के जे स्टेशंस को वो सॉरी आर स्टेशंस को वो सप्लाई कर सकता है। या तो किसी मतलब n सिटीज़ है, तो किसी सिटी की पावर क्या होगी, क्या टोटल नंबर ऑफ़ पावर स्टेशन जिनसे वो पावर ले सकता है। या तो किसी ith सिटी की पावर होगी नंबर ऑफ़ पावर स्टेशन जिनसे वो पावर ले सकता है। सो पावर ऑफ ith सिटी विल बी number of power station on ith city, number of power station on I plus 1 up to I plus R. Yeah, and sum of number of power station up to I minus R. Yeah, ऐसा होगा बेसिकली, मतलब कि अगर मेरा सिटी ith है, if the city is I, तो ये इससे भी ले सकता है, if R is this one इससे ले सकता है ना, इससे ले सकता है, इससे ले सकता है, इससे ले सकता है, इससे लाइक अपने आगे वाले R से लेगा और पीछे वाले R से लेगा, अगर आगे और पीछे है तो। या तो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कुछ के पावर स्टेशन दे रखे हैं कि हम इन्हें किसी भी सिटी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन से या किसी भी सिटी में हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, मतलब कहीं भी ऐड कर सकते हैं। हमें फाइनल इससे मतलब है कि जो मिनिमम ऑफ, जैसे हर सिटी पे कुछ नंबर ऑफ़ पावर स्टेशन पावर दे सकते हैं, तो उनमें से जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो।
या ऐसा कुछ हो मतलब, हाँ। ओके, सो अब हम ये कैसे करेंगे, देखो मैं इसमें पहले बताता हूँ कि हाउ आई रीच टू दिस सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा के 1E9 तक है। तो मैं जैसे आई कांट डू दिस कि मैंने हर सिटी की पावर कैलकुलेट कर ली एंड नाउ आई एम प्लेसिंग ईच पावर स्टेशन टू सिटी वन बाय वन। आई कैन डू दिस बिकॉज के इज़ 1E9। 1E5 तक होता तो मे बी हम वैसे कर सकते थे। सो what can we do is, like if the answer is x, then x minus वन, like अगर if किसी सिटी मिनिमम सिटी की पावर x है तो x माइनस वन तो होगी ही ऑब्वियसली। तो इफ़ x है तो x प्लस वन होना की गारंटी नहीं है, पर x माइनस वन होगी। सो इससे क्या हम क्या सोच सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च है। या बाइनरी सर्च में ऐसे ही होता है कि मिड की है तो मिड माइनस वन होगी, पर मिड प्लस वन की गारंटी नहीं है। या सो लाइक दिस। तो समझते हैं, पहले पहले तो आई हैव cloned this station array into VEC array, which is basically typecasted into long so that I don't have to think for overflow. Yeah, and now my start is 0 and end is 1E12 and answer is 0. Yeah, so this is the mid and temp vector. Now temp vector is the cloned of initial station vector, or you can say VC vector. And now I'm checking if अगर मैं मेरा आंसर मिड हो सकता है, then my answer will be the max of answer comma mid, and I am incrementing my start point. So I am making my start to mid. Now I have to check from mid to end. Yeah, and अगर मेरा आंसर मिड नहीं हो सकता तो now, so then I will decrement my end point. So my answer will be between st and mid minus 1 in that case. Yeah, so what is scan function doing? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, फॉर जीरोथ सिटी के लिए मेरे पास कितनी पावर स्टेशन होंगी, सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ पावर स्टेशन फ्रॉम 0 to R सिटी। तो मैंने जीरोथ सिटी के लिए कैलकुलेट कर ली। या ओके, है ना। इफ़ टॉट इज़ आई एम नाउ गोइंग to all cities, and if dot is less than mid, then I will add the number of power station to the rightmost city. Why am I adding the number of power station to the rightmost? Because the rightmost city will give power to the most number of city. लेफ़्ट की सिटी तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है ना। तो अब मैं पीछे ऐड करके, जैसे आई एच सिटी से पीछे ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लेफ़्ट की सिटी ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, उनमें मिड से मैं ज़्यादा कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं राइट मोस्ट में दूंगा ताकि इट कैन कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट नंबर ऑफ सिटीज़। या सो मिनिमम ऑफ मिड माइनस डॉट कितना कम है उतना, और ये एंड नाउ आई एम एडिंग वी सी एन माइनस वन कॉमा। या इसमें मैंने मिनी ऐड कर दिया, के में से मिनी कम कर दिया क्योंकि हमारे पास के लिमिट है कि इतने नंबर ऑफ पावर स्टेशन ऐड कर सकते हैं। एंड आई हैव इंक्रीमेंटेड डॉट। अगर स्टिल डॉट इज़ लेस देन मिड तब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आई एच सिटी में मेरे नंबर ऑफ पावर स्टेशन मिड से कम होंगे। सो मैं रिटर्न कर रहा हूँ फॉल्स। एंड इन एल्स केस, अच्छा अब मुझे क्या करना होगा कि जैसे मेरे को आई प्लस वन सिटी पे मैं जाऊँगा, तो जैसे आई माइनस आर वाला जो था वो तो उसके लिमिट से हट जाएगा, आई प्लस वन की लिमिट से। सो वो मैंने हटा दिया। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो मैंने टोटल में से आई माइनस आर हटा दिया, क्योंकि आई प्लस वन के लिए ये सिटी के पावर स्टेशन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और सेम इसके लिए, जैसे अभी आई एच सिटी के लिए आई प्लस आर प्लस वन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, पर आई प्लस वन सिटी के लिए वो करेगा कंट्रीब्यूट, तो मैंने वो ऐड कर दिया बेसिकली। सिंपल एंड एट लास्ट अगर सब हो गया, सो आई एम रिटर्निंग ट्रू। या दिस विल बी द आंसर। दैट्स इट। Yeah, so if you have any doubt, you can connect me with over Discord or any of the social media handles. I have attached the link below. बेसिकली आज मैंने वाइट बोर्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं किया कि बिकॉज मेरा स्टाइलस ख़राब हो गया है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।